Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you all? Hope you all would be in good health and enjoying at home. This lesson is for 5th class students. This is 4th lesson of our English book. That is The Man Who Swallowed a Snake. Let's begin. There are many sagacious people in and around us, like doctors, teachers, engineers, and other professionals who work for the betterment of the people. They use their wisdom to help us come out of adverse situations. In this story, a wise man treated the victim without frightening him about the poisonous snake in his stomach through his wisdom. Read the story and find out how the wise man acted in a difficult situation without losing his presence of mind. One day, a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. The wise man dismounted quickly and tried to secure the snake away, but to no avail. Taking up his club, he struck the sleeping man with several powerful blows. Awakening abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. It was an apple tree, and the ground around it was covered with rotten fruit. "Eat them," ordered the wise man, stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. "Why are you doing this to me?" asked the man. "What have I done to you? What have I done to offend you? If you have a quarrel with me, settle it with your sword. Oh, cursed was the hour that you saw me, and blessed is the man who never sets eyes on you. Look, my mouth is pouring with blood and words. Oh God, I beg thee, repay him in like manner." Yet, however much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. "Keep running," shouted the wise man, and the man kept running from his pursuer, picking himself up off the ground whenever he felt flat on his face, stuffed with apples, his body covered in cuts and bruises. He was chased backwards and forwards by the wise man until nightfall, when he was seized by a violent bout of vomiting. Everything came up, including the snake. When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. "Truly," he said, "you are an angel for me. Oh, blessed is the hour that you saw me, for I was dead, and you have given me new life. Had I known, how could I have said such foolish things? I would have praised you had you given me the slightest hint as to what you were doing really. Instead, you kept quiet and carried on beating me in silence." "Had I told you about the snake," replied the wise man, "you might have died of fright. You would have been so terrified that you would not have been able to eat, nor to vomit. I heard you abuse me, but carried on with what I had to do, repeating to myself, 'Oh Lord, make it easy.'" Adapted from Rumi. Dear students, this story is adapted from the writings of Rumi. Rumi, जो आपको पता है कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो शम्स तबरेज़ अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे, जिनको मौलाना रूमी कहा जाता है। उन्हीं की बहुत सारी स्टोरीज़ जो है एक सेंट थे, तो उसी में से ये एक स्टोरी है। वो बताते हैं उसमें, जैसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का मतलब समझाऊंगी। द मैन हू स्वैलोड ए स्नेक। एक आदमी होता है
जो एक स्नेक को निगल जाता है। अब आप सोचोगे कि कोई स्नेक क्यों निकलेगा, तो इसको जानने के लिए हमें आगे की स्टोरी देखनी है। कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। पीपल मीन्स लोग, सिगेशियस मीन्स वाइज, जो बहुत अक्लमंद होते हैं। उनमें होते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे काम के लोग। इतने ही नहीं होते हैं, वाइज मैन कोई भी हो सकता है, दाना कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इसने कुछ प्रोफेशनों को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। दे यूज़ देयर, जो कि हमें डे टू डे में मतलब ज़रूरत जिनकी पड़ती है, जैसे आज कोविड है तो आज हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको वाइजली एक्ट करना पड़ता है। टीचर्स एज ऑलवेज, वो उनमें कितना विजडम होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंजीनियर्स जो इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो कितने वाइज होते हैं। बहुत सारे लोग वाइज होते हैं अपने अपने तरह से, अपने अपने काम में। तो यहाँ उन्होंने कुछ प्रोफेशनल्स को हाईलाइट किया है। तो कहते हैं कि दे यूज देयर विजडम टू हेल्प अस कम आउट ऑफ एडवर्स सिचुएशन। तो जो हमारी कोई मतलब ख़राब सिचुएशन होती है, गॉड फॉरबिड, तो उस वक्त हेल्प करते हैं हमें कोई भी प्रोफेशनल जो हमें हेल्प करता है। तो जब वो अक्लमंदी से काम लेता है, अपनी विजडम से काम लेता है, यही इस स्टोरी में एक आदमी होता है। वो डॉक्टर या कुछ और तो नहीं होता है, बट वो ऐसे वाइजली एक्ट करता है कि उस आदमी की, दूसरे आदमी की जान बच जाती है। कहते हैं कि इन दिस स्टोरी वाइज मैन ट्रीटेड द विक्टिम, विक्टिम हो गया जिसने इस स्नेक को निगल लिया, विदाउट फ्राइटनिंग हिम अबाउट द पॉइजन स्नेक। अगर किसी को स्नेक, आप में अल्लाह बचाए, आप में मुझे किसी को भी या हमारे आसपास किसी को स्नेक ने बाइट किया, तो हम इतने फ्राइटनिंग हो जाएंगे, हम इतने डर जाएंगे कि हम चिल्लाएंगे, हम शोर मचाएंगे, उसको ज़्यादा डर लगेगा। ऑलरेडी वो डरा हुआ होगा, तो हमें ज़्यादा मतलब हमारी वजह से वो ज़्यादा डर जाएगा और वो बेचारा मर भी सकता है। अगर स्नेक की मतलब पॉइजन की वजह से बच सकता है, या वो कोई वहाँ से काउंटर अटैक करता खुद, या खुद को बचाने की कोशिश करता, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खूब ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस स्टोरी को पढ़ के हमें ये समझ आता है, अगर कभी हमें कोई एडवर्स, कोई मुश्किल लात आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो हमें खूब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइज मैन की तरह वाइजली एक्ट करना चाहिए। चाहे दूसरे को बचाना हो या खुद को बचाना हो, हमें खूब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इस मतलब सारा कुछ ये समझने के लिए हम इस स्टोरी को आगे समझेंगे। कहते हैं कि एक दिन एक वाइज मैन चल रहा था। ही वॉज राइडिंग, ही इज़ नॉट वॉकिंग, वो मतलब राइड कर रहा था, घोड़े पे या किसी गाड़ी पे, वाट एवर, किसी भी चीज़ पे वो राइड कर रहा था। तो वो नीचे उतरा। उसने क्या देखा, वो नीचे क्यों उतरा, वो गुजर रहा था एक जगह से, वहाँ एक एप्पल, जो सेब का बाग है, वो एक बाग में एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे एक आदमी सो रहा था। वो मतलब ऐसे सो रहा था कि खराटे ले रहा था, बिल्कुल गहरी नींद में था। और वहाँ से वो जो आदमी, जो वाइज मैन है, वो जो गुजर रहा था पास से, तो वो एकदम से नीचे उतरा। उसने क्या देखा, एक बहुत डरावना स्नेक जो होता है, छोटा सांप, तो वो उस आदमी के मुंह पे था, बिल्कुल जो खराटे ले रहा था उसके मुंह पे था। उसने सोचा कि मैं इस सांप को थोड़ा सा भगाऊं, इसको डराऊं, तो ये भाग जाएगा और इस तरह से वो जो वहाँ पे सो रहा था वो बच जाएगा। तो उसने उसको थोड़ा सा स्टक किया, उसने छड़ी उठाई और उसको 2-3 बार मारा, लेकिन वो नहीं भागा और वो थोड़ा सा उस आदमी के मुंह में घुस गया था जो सो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, उसको पता भी नहीं चला और वो उसके मुंह में चला गया। उसने मुंह खुला रखा था, क्योंकि जब आदमी खराटे लेता है तो उसका मुंह खुला रह जाता है, तो वो उसके मुंह से चला गया और अंदर चला गया, बिल्कुल वो सांप निगल गया। उसने बाइट नहीं किया, लेकिन निगल गया सांप को। तो जब उसको पता चला कि वाइज मैन को नहीं, अब ये मतलब वापस नहीं आ सकता, ये नहीं भागा मुझसे, वो उस विक्टिम के मुंह में चला गया, जो आदमी इस पेड़ के नीचे मतलब दरख्त या पेड़, अब जो सेब का था, आप जो भी कहोगे, तो उसके नीचे जो सो रहा था बिल्कुल गहरी नींद में, तो उसने उसको मारा। एक वाइज मैन ने, जो दाना आदमी था, उसने उस आदमी को मारा जो सो रहा था। मारा क्यों? इसलिए मारा क्योंकि उसको जगाना ज़रूरी था। अगर वो वैसे ही रहता, उस सांप में जहर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैल जाता उसकी बॉडी में, इसलिए उसको जगाया और उसको बहुत मारा। पहले तो वो नहीं जागा 2-4 ब्लो से, लेकिन जब मारा और छड़ी से, तो वो आखिर जाग गया।
तो उसने जब वो जागा नींद में तो उसने बोला मैंने क्या किया है, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, मतलब व्हाट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अगर मतलब हमें भी कोई ऐसे जगाएगा फिर मारेगा तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। तो इसने भी वैसे ही किया। इफ़ यू हैव अ कॉल विद मी सेटल विद यू, आप मुझे अगर मतलब झगड़ा है मेरे साथ, कोई रंजिश है मुझसे, तो आप मुझे सीधे मार ही डालो, तो मुझे क्यों इतना मार रहे हो। तो उस जो दाना आदमी था उसने ऐसे मतलब उसने डेफ एयर दिया उसकी तरफ, मतलब सुना ही नहीं, उसने कान ही नहीं धरा उसकी बातों की तरफ और उसको मारने लगा और उसको उठाया। जब वो उठ गया तो उसने बोला उसको ये सब जो जहाँ वो सो रहा था वहाँ पे बहुत ख़राब जो सेब थे, ख़राब थोड़े से ठीक भी वो पड़े थे। उसने उसको बोला ये सब खाओ आप। तो उसने बोला मैं क्यों खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने नहीं माना वाइज मैन ने। उसने अपनी जो तलवार थी उसने वो निकाली। तो उसने जब सोड निकाली, अपनी जो तलवार उसके पास थी, जो वाइज मैन था, तो उसने वो निकाली और उसको बोला कि मैं आपको मार डालूंगा, इसलिए इन जल्दी जल्दी इनको खाओ। तो वो बेचारा जो नीचे सो रहा था उसको लगा कि ये मुझे मारेगा, तो अब मैं जल्दी जल्दी वो खाने लगा। तो उसने बोला नहीं आप और खाओ और खाओ और खाओ। इतने खाए कि मतलब अब उसे नहीं खाए जाए, उसका जो पेट है वो फुल हो गया, अब उसे नहीं खाया जा रहा था। अब उसको लगा था कि मैं ये सब खा के एप्पल्स तो अब मुझे छोड़ देगा, पता नहीं इसको ये कोई पागल आदमी है, पहले मुझे मारा जगाया, अब मुझे बोल रहा है कि आप ये सारे सेब खाओ, ये ख़राब सेब, लेकिन अब तो मुझे छोड़ देगा। लेकिन उसने उसको तब भी नहीं छोड़ा और वो उसका पीछा करने लगा और उसको भगाने लगा। उसके पीछे मतलब तलवार लेके घूम रहा था, उसको वो भाग रहा था, यहाँ से वो सोया था, फिर उसको ख़राब एप्पल्स खाने को कहा और उसको इतना मतलब इसके पीछे इतना दौड़ा कि वो तेज़ तेज़ हाँकते हुए भाग रहा था। अब उसने सोचा कि ये पूरा पागल है, लेकिन उसके हाथ में तलवार है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो भाग रहा था, तेज़ तेज़ भाग रहा था और वो उसको बिल्कुल मतलब वायलेंटली उसको पीछे से वो तलवार लेके उसके पीछे पड़ा था और उसको बोला था आप मत रुको। वो बोल रहा था मेरे मुंह से अब खून निकल रहा है, मुझे अब मतलब माफ़ करो, लेकिन वो नहीं, उसने माफ़ नहीं किया, उसने बिल्कुल नहीं सुनी। और लास्ट पे जब वो बहुत थक गया, उसको वो मतलब यहाँ से मार भी रहा था छड़ी से, कि मतलब वो थोड़ा सा रुकता था तो वो मारता था उसको, उसको रुकने नहीं देता था, जो मतलब दाना आदमी था। जब वो दूर तक मतलब थक गया, अब उसको हिम्मत भी नहीं रही, तो उसको एकदम से वोमिटिंग हुई। इतनी वोमिटिंग हुई, इतनी उसको उल्टी आई कि वो जो उसने सारे वो ख़राब एप्पल्स खाए थे वो एकदम से वापस आ गए। तो इसके साथ ये सांप भी वापस आ गया, क्योंकि उसने निगल लिया था, चबा नहीं लिया था, वो भी वापस आ गया। जब थोड़ी देर ठहरा, उसको थोड़ा सा मतलब अपनी सिचुएशन ठीक की, वो बात करने की मतलब इस बीच एक और बात हुई कि वो जब उसको मार रहा था तो वो जो विक्टिम है वो उसको वहाँ से पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, उसको गालियाँ दे रहा था, उसको बुरे अल्फाज बोल रहा था कि आप कितने ज़ालिम हो, आप कैसे हो, आप मुझे कितना जुल्म कर रहे हो। तो मतलब मुझे कौन सी गलती हुई मुझसे, आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा क्योंकि आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो। तो इस वजह मैंने कुछ नहीं बोला, इसने चुपके से उसको मतलब उसके पीछे दौड़ता रहा, उसको मारता रहा। लास्ट पे जब उसको वोमिटिंग हुई तो वो थोड़ी देर बाद जब वो ठीक हो गया तो वो समझ गया कि गलती उसकी नहीं थी, मुझ में ही प्रॉब्लम थी कि मैंने ये मतलब ये जो सांप है ये शायद मेरे अंदर पता नहीं कैसे चला गया था, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया कि वो ठीक किया, तो वो समझ गया। तो उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसको बोला आपने मुझे एक हिंट दिया होता, मुझे बोला होता कि आपने सांप निगल लिया है, तो इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा और आपने चुपके से सब कुछ बर्दाश्त किया, सब सहा मेरे लिए, सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए, और आज आपने मुझे नई ज़िंदगी दी। तो उस आदमी ने बोला, वाइज आदमी ने, अगर मैं आपको कहता कि आपने एक सांप निगल लिया है, ना आप एप्पल्स खाते जो सेब है ना वो खाते, अगर मैं आपको अच्छे से समझाता ना आप वो खाते, ना आप कुछ मानते मेरा, और आप इतने खूबज़दा होते कि आप मर जाते, मतलब आप सोचते भी नहीं कि मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल मतलब खौफज़दा हो जाते इस सिचुएशन से और हम मर जाते। लेकिन मैंने ऐसे एक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे करूँ थोड़ा सा जुल्म आपको लगेगा, लेकिन बाद में जो आपको नई ज़िंदगी मिलेगी ओवेसली आप मेरा शुक्रिया करो ना करो अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे और मुझे अपने अल्लाह के पास मतलब अजर मिलेगा। तो ये होता है कि एक सिचुएशन, इसका मतलब नैरो मीनिंग तो ये है कि हमें सिचुएशन में फ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, खौफज़दा नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी
किसी परेशानी से, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, तो हमें बिल्कुल हिम्मत से काम लेना चाहिए। और अगर किसी और के साथ कोई ऐसे परेशानी हो तो उसको भी हमें हिम्मत देनी चाहिए और किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी मतलब जान बचानी चाहिए। ना खुद परेशान होना चाहिए, ना उसको परेशान करना चाहिए। लेकिन जो कि ये रूमी का मतलब रूमी की सेइंग्स में से है, तो इसका इतना नैरो मीनिंग नहीं है, इसका बहुत डीप मीनिंग है। इसका मीनिंग है, पूरा तो नहीं हम समझ सकते, लेकिन जितना हम समझ सकते हैं इसका मीनिंग, कहते हैं कि रूमी एक सेज था, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। वो बोलते हैं कि जब कोई बुजुर्ग होता है वो बड़ा बड़ा मतलब बुरा बुला भला कहता है, तो उससे हमें ये लगता है कि वो मतलब उसने पता नहीं हमें क्या कहा, या कोई हमें कोई दीनी बात कहता है, कोई अच्छी बात कहता है, माँ बाप हमें नसीहत देते हैं, हमारे उस्ताद हमें समझाते हैं, या कोई दीन के मामले में कोई दीन की बात कहता है, तो हमें लगता है कि इसने हमें बुरा कहा। लेकिन एक सांप हमने निगल लिया होता है, जो जहर का सांप है। ये जहरीला सांप क्या होता है? जो झूठ हम में है, जो बुराइयां हम में हैं, जो गलत चीज़ें हम में हैं, तो वो सब जो चीज़ें हम में हैं, तो ये सब हमने निगल लिया होता है एक सांप की तरह। अब वो मतलब ज़िद हम में होता है, हमें रश्क होता है, हमें पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी बुराइयाँ दुनिया की है वो हम में होती है। तो वो जो चाहते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, या कोई दीन का मतलब दावत देने वाला होता है, वो जब हमें बोलता है कि आप झूठ मत बोलो, आप गलत काम मत करो, आप ये मत करो, या कोई हमें अच्छी नसीहत देता है, तो हमें लगता है कि ये हमें डांट रहा है, ये हमें मार रहा है, ये हम पे जुल्म कर रहा है, ये हमें बिल्कुल मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो तंग कर रहा है। हमें ऐसे ही लगता है कि इसको हमारे साथ क्या ज़िद है, जैसे इस विक्टिम को लगता था कि इस वाइज मैन को मेरे साथ। लेकिन वो बोलते हैं कि लास्ट पे आप ही की भलाई होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो अपने लिए नहीं कुछ कहता है, इसमें आपकी भलाई होती है। वो कहता है आपको कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ज़िंदगी जो है वो आखिरत की है, ये दुनिया कुछ नहीं है। इस दुनिया में आपको जो अच्छी चीज़ें लग रही है, आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो, जो जैसे ये आदमी सो रहा था इस दरख्त के नीचे, वैसे ही आप सो रहे हो, तो आपको जागना चाहिए। आप जागोगे, अगर आप नहीं जागते हो तो आपको मतलब कोई ऐसे जगाना चाहिए जैसे कि इस आदमी को उसने मारा, तो आपको वैसे ही जगाना है, क्योंकि आपने एक सांप को निगल लिया है। और आपको फिर ऐसी चीज़ें खाने पे इसलिए मजबूर कर रहे हैं हम, क्योंकि आप जब मतलब सारा जब वोमिट करोगे तो उसके साथ ये जहर भी निकलेगा। इसलिए या हमें कभी कोई तकलीफ़ होती है, कभी हमारी हालत ख़राब होती है, बहुत सारी आजमाइशें अल्लाह देता है, उस इसलिए कि हम सुधर जाएंगे, हम गलत काम छोड़ देंगे, तो और मतलब हम अच्छे फिर से हमारी नई ज़िंदगी मिलेगी। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप इस नसीहत पे अमल करोगे जो कि इस स्टोरी में हमें मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।